اور ظاہر بات ہے کہ تہذیبوں کے پیچھے کوئی علم ہوتا ہے، ٹیکنالوجی ہوتی ہے، اور جہاں کہیں علم اور ٹیکنالوجی آ جائے ان کی تہذیب برتر بن جاتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ آیت دنیا کو سنائی، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ ایک تو اس میں حکم ہے، ریڈ، پڑھ، بسملہ لگائی، ان دی نیم آف دی لارڈ، اپنے رب کے نام سے۔ جو کچھ پڑھنا ہے، فزکس، میتھس، سائنس، کیمسٹری، اردو، لٹریچر، کوئی بھی مضمون ہو پڑھیں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن بس پڑھنا اپنے رب کے نام سے، اپنے رب کا نام لے کر، اپنے رب کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر، اپنے رب کی حدود کو سامنے رکھ کر اس کے اندر رہ کر آپ کو پڑھنا ہے۔ میں اکثر کبھی کبھی ایسی محافل میں جہاں اساتذہ اور طلبہ ہوتے ہیں کہا کرتا ہوں کہ میرے اساتذہ کی تعلیم و تربیت اگر ایسی ہو جائے کہ بایولوجی کے طالب علم کو بھی معلوم ہو، استاد کو بھی معلوم ہو، تو وہ بچوں کو صرف یہ نہیں پڑھائے گا کہ ڈارون نے ارتقاء کا نظریہ پیش کیا کہ یہ دنیا خود بخود بن گئی۔ میرے بایولوجی کا استاد پھر یہ نہیں پڑھائے گا کہ ارتقاء کے مراحل سے گزر کے انسان بنا ہے۔ میرے بایولوجی کا استاد پھر اس کو یہ ضرور بتائے گا کہ یہ سب کچھ ارتقاء کے مراحل سے گزر کے وجود میں آیا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک عظیم خالق ہے، ایک کریٹر ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلی آیت میں دنیا کو تمام گناہگار صفات میں سے اپنی صفت بتاتے ہوئے فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ ہمارے ہاں تعلیم کا مقصد کچھ پیدا کرنا تھا، یہ اسلام کا نظریہ تعلیم ہے۔ Definition of a learned person, definition of an educated person, what is to create something purposeful and constructive. کوئی بامانی چیز پیدا کرے، جیسے کہ ہمارے ایک شاعر نے فرمایا تھا، تم شوق سے لختے جگر نور نظر پیدا کرو، آبادی بڑھاؤ، 22 کروڑ سے 23 کروڑ بن جائے۔ تم شوق سے لختے جگر نور نظر پیدا کرو، ظالم و تھوڑی سی گندو بھی بدل پیدا کرو۔ ہم گندم باہر سے تو نہ منگائے نا، چینے کے لیے دوسروں کے محتاج تو نہ ہو۔ ارتقاء تہذیب کا یہ ہے کہ پھولوں کی بجائے تھوپ کا منہ، بھم کا دڑ، رکٹ کا سر پیدا کرو۔ حضرت اقبال کا شاہین تو ہم سے اڑ چکا، اب اپنا مقامی کوئی جانور پیدا کرو۔ نہ ہم مقامی جانور کے پیدا کرنے کے قابل رہے، اور شاہین تو بات ہے کہ ہم پکڑ ہی نہ سکے۔ اصلی تقاضے کیا ہے؟ اصلی تقاضے یہ ہے کہ ہم اپنے طلبہ کو، ہمارے ہاں جو ایک غلط اصول ہے، یہ اسلامیات کا استاد ہے، اس کا کام ہے دین پڑھانا، یہ مدرسے کے علماء کرام ہیں، ان کا کام ہے نمازیں پڑھانا اور جناب قرآن پڑھانا اور فقہ کی کتابیں پڑھانا، قدوری پڑھانا اور کنز و دقائق پڑھانا۔ اور یہ ہمارے سائنس کا استاد ہے، جناب اس نے سائنس پڑھانی ہے۔ اور غضب خدا کا انگریزی زبان کے اساتذہ الا ماشاء اللہ ایکسپیکشن کرتے ہیں، لیکن انہوں نے قسم کھائی ہے کہ ہم تو ہیں انگریزی میں پی ایچ ڈی ہے، لہذا میرے لیے دین اور نماز اور عبادت یہ ہے تو انگریز کا وارث ہوں، اور یہی ترقی ہے، یہی تقاضا ہے۔ اور سائنس والے بھی بعض اوقات اتنے آگے نکل جاتے ہیں، فزکس، کیمسٹری، باٹنی، بایولوجی والے، کہ وہ اپنے، میں اکثر عرض کرتا ہوں طلبہ کے سامنے کہ دنیا کے 3 انسان ایسے ہیں جنہوں نے انسانیت کے ساتھ، یعنی موجودہ انسانیت کے ساتھ، آنے والوں کے ساتھ، جب تک یہ نظریات پڑھائے جاتے رہیں گے، جب تک اساتذہ ان کی کریکشن نہیں کریں گے، مسلمان اساتذہ، یہ ظلم ہوتا رہے گا۔ اور وہ کون ہے؟ ان میں سے ایک ہے یہی ڈارون۔ اس نے مخلوق کو خالق سے کاٹ دیا۔ وہ لطیفہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ میں ابھی ناشتے کے میز پہ بچے کو بتا رہے ہیں نا، ایک پوچھ رہا ہے کہ بھئی ہم کیسے پیدا ہوئے ہیں، تو جناب وہ باپ اسے کہہ رہا ہے کہ اس طرح یہ
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दुनिया पैदा हुई और फिर जनाब पानी के जरिए, हशरात के जरिए और इर्तिका के जरिए चिपली और बंदर और फलाद फिर हम इंसान बने। तो अम्मी से कहता है कि अम्मी हम कैसे पैदा हैं? जी कहा इस तरह अल्लाह का मेहमान और बारिश ही और आप हमारे घर आए। उन्होंने कहा अब वो तो कह रहे हैं कि इस तरह, कह रहे हैं अपनी बात कर रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ ये ढाले, दूसरा जो है वो सिगमंड फ्राइड है, बताऊंगा, और तीसरा थॉमस कार्लाइल। एक ने मखलूक को, इंसानियत को खालिक से काट दिया और थॉमस कार्लाइल ने पेट को सबसे बड़ा मसला करार दिया और मजहब को घोर धंधा करार दिया। कहते इंसान का पेट खाली हो तो कोई फलसफा, कोई मजहब, कोई अखलाकियात नहीं है। खानदान में और कोई नबी या रसूल मबूस नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने अहले मक्का पर और पूरी दुनिया पर यह एहसान फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस। बाद मुफस्सिरीन वाज़ेह माने इसका एक कर लेते हैं तर्जमा। पश्तो में मैं कहूँगा कि खास अल्लाह रज़ाते चले गले में पमक्की वालों के, अलुमीन पमक्की वालों के। आप ताज़े इस तरफ न जाए कि अनपढ़ गवाने जा रहे नहीं, वो किसी से पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन थे सारी दुनिया के उस्ताद। कुछ लोगों ने उन पर इल्जाम लगाया था कि वो फला बशर आपको सिखा रहा है। मक्का मुकर्रमा में एक लोहार रहा करता था, किदारी था वो, उसके पास कुछ इल्म था तौहीद का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार उसके पास बैठा करते थे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि आप ये जो किताब पढ़ा रहे हैं, ये आपको वो फला उस्ताद उसकी तालीम और तरबियत का इल्म दिया है। कुरान मजीद ने इसका जवाब दिया है कि नहीं, कोई भी इंसान में आपका उस्ताद नहीं। लिसानुल लज़ी युल्हिदून इलैहि आजमियुन, वो शख्स जिसकी तरफ ये मंसूब कर लेते हैं वो तो आजमी है। और ये किताब लिसानुन अरबी मुबीन, कुरान तो अरबी मुबीन है। तो उम्मीयीन में से, मक्का वालों में से अल्लाह ताला ने एक नबी को उठाया। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम, उन्हीं में से एक रसूल, उन्हीं में से एक का मतलब ये है कि जैसे वो बशर थे वैसे ही उनमें से एक नबी को उठाया। उस नबी की जिम्मेदारियां क्या है? तो पहली जिम्मेदारी ये बताई, युअल्लिमुहुमुल किताब, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम। उसकी पहली जिम्मेदारी तिलावत आयात, तालीमी किताब, फिर तज़किया और उसके बाद तालीम हिकमत हुआ। तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुअल्लिम होना, तालीम देना, उस्ताद होना, ये वो बुनियादी चीज़ है जो अल्लाह ताला ने उन्हें उससे नवाजा, ये शरफ उन्हें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अगर हम देखें, जो तहम्मुल, बुर्दबारी, बर्दाश्त और इस दुनिया में जितना माफ किया गया है नबी ने, इस तरह कायनात में कोई ऐसी शख्सियत हमें नहीं मिलती है। अबुल कलाम आजाद लिखते हैं, मजलूमी में सब्र, मुकाबले में अज़म, मुआमले में रास्तबाजी और कुदरत और ताकत के बावजूद दूसरे को माफ करना इंसानियत के वो नवादिर हैं जो किसी शख्सियत में यकजा तौर पर इस तरह जमा नहीं हुए हैं जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जमा हुए हैं। आज हम इनफिरादी तौर पर भी टूट फूट के शिकार हैं, इज्तिमाई तौर पर भी टूट फूट के शिकार हैं। वजह क्या है? हमने नबी के उसवे हसन को छोड़ दिया है। तहम्मुल का सबसे ज्यादा मुजाहिरा
इंसान का अपने मातहतों, नौकरों, खादिमों और घर वालों से होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अगर हम नज़र दौड़ें तो हज़रत अनस बिन मालिक का वाक़या हमें नज़र आता है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक मेहनत की, खिदमत की। लेकिन अनस फरमाते हैं कि इन 10 सालों में नबी ने हमें कभी डांटा नहीं, कभी झड़का नहीं, कभी धमकी नहीं दी और कभी जो है मारा नहीं। हम देखते हैं कि एक इंसान बहुत अच्छा मुकर्रर होता है, बड़ा नेक होता है, लेकिन अंदरून खाना वो जलाल वाले होते हैं। उनके बच्चे उनसे बात नहीं कर सकते हैं, उनकी बीवी उनके करीब नहीं जा सकती हैं। ये क्यों? इसलिए कि शैतान ने आजकल गुनाहों के नाम तब्दील कर दिए हैं। गीबत का नाम गपशप रख दिया, झूठ का नाम बहाना रख दिया और गुस्से का नाम जलाल रख दिया। नबी की जिंदगी में तो हमें नजर नहीं आते हैं कि आप बिला वजह गुस्से होते हैं, बिला वजह किसी को डांट रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक सहाबी के बारे में आता है कि उसकी आदत थी कि जहां पर उनको अच्छी खजूरें मिलती वो उसको काट कर खा लेते। कहते हैं एक मर्तबा एक खजूर वाले के मालिक ने उनको पकड़ लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में लेके आए, शिकायत की कि ये मेरे खजूरे को तोड़ कर खा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको करीब बुलाया। ये सहाबी फरमाते हैं मुझे डर लगा कि पता नहीं आज मेरा हाथ काटेगा या मुझे मेरे साथ क्या मामला होगा। कहते लेकिन जो ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे करीब बुलाया तो शफकत भरा हाथ मेरे सर पे रखा और पूछा तुम खजूरे तोड़कर क्यों खाते हो? कहते मैंने कहा कि हजरत भूख लगती है इसलिए खा लेता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो जो घिरी हुई खजूरें हैं आप उनको उठा लिया करें, लेकिन अगर दरख्त में लगी हुई खजूरें हैं तो मालिक की इजाजत के बगैर उनको तोड़ना जायज नहीं है। और इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दुआ दी, या अल्लाह इसके फकर को और इसके भूख को खत्म करें। वो सहाबी फरमाते हैं कि जिंदगी भर में वो गुनाह मुझसे दोबारा सरजद न हुआ। ये है अफू दरगुज़र। बीच पैदा करनी डॉक्टर कबीर के बकौल रहमहुल्लाह फरमाया कि बीच पैदा करने तो मेरे बाएं हाथ अकेले। इसे सवाल किया कि ये जो मोबाइल इंडिया बना सकते हैं, मोबाइल की पर कोई काम स्किल पैदा करें, हुनरमंद नहीं है हमारे यहाँ। और सबसे बढ़कर फसल अखलाकियात। आयत पढ़ाते, हदीस पढ़ाते, तो उनका तरीका है ताकि वो कम से कम 3 बार उसे दोहराते थे। जो लोग हदीस के तराजू से वाकिफ नहीं होते तो वो इस हदीस का मजाक उड़ाते कि क्या वो पागल थे कि हर बात को 3 बार दोहराते। बात की बात नहीं हो रही, तदरीस की बात। तारीख यहाँ तक कि अरबी ग्रामर को भी जिस शख्सियत ने मुझे पढ़ाई थी, आज उन्होंने हमारे इस माहौल को, इस महफिल को छाछा लगा दी। मेरी मुराद डॉक्टर सिराजुल इस्लाम हनीफ साहब हैं, जो तकरीबन 62 किताबों के मुसन्निफ हैं। और इसी तरह मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर दोस्त मोहम्मद खान साहब, जब हम मास्टर्स में थे यूनिवर्सिटी में तो वो उनके लेक्चर में हम इसी तरह शिरकत किया करते थे शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर में। वहाँ पे भी बहुत मौका मिलता था और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी तकरीबन 2 साल तक सर रहे थे, हमारे चुड़ी रहे थे। तो इनका हातिफाना और शफीकाना जो हमारे साथ रवैया था, अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत कुछ सीखा है। और इसी तरह मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर सईद नईम बुखारी साहब हमारे PhD के उस्ताद थे इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए सआदत की बात है कि आज तीनों मेरे उस्ताद असातिज़े कराम जो हैं वो आज स्टेज पे बराजमान हैं और हमारे इस महफिल को छान लगाने हैं। मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे एक छोटे शागिर्द की हैसियत हमने उनको रिक्वेस्ट की थी और वो आए हैं।